Hello students, welcome to all of you today. Today we will discuss a very beautiful sonnet titled as When to the Seasons of Sweet Silent Thought, composed by none other than the pride of English literature, William Shakespeare. Dear students, this sonnet is popularly known as Remembrance or Sonnet 30 by William Shakespeare. Dear students, this sonnet was most likely written in the early 1590s. At that time, William Shakespeare was a young playwright recently arrived in London. Dear student, despite its author's youth and inexperience, this sonnet brings on life's disappointments. Dear students, it is written in Shakespearean form, comprising 14 lines of iambic pentameter, divided into three quatrains of 4 lines each, and a couplet of 2 lines. Dear students, if you want to know sonnet and its types in details, then go to the link given above. This is Vijendra Singh welcomes all of you to your own YouTube channel, Singh Vijendra Assistant Professor. Let's start our today's session. Dear students, before we take up the detailed analysis of the sonnet, let's have a look on the brief introduction to the poet William Shakespeare. The myriad-minded genius, the pride of English literature and pupil, the greatest writer in the English language and world's greatest dramatist, William Shakespeare was born on April 26, 1564 at Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, and he was taken away by death on April 23, 1616 at the age of 52. William Shakespeare was the greatest dramatist, sonneteer, poet, actor and playwright of the Elizabethan age. Dear students, as you know, the period of Elizabethan age in English literature is from 1558 to 1603 during the reign of Queen Elizabeth I in England. इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल को ही इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है. यदि हम विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की बात करें, देन विलियम शेक्सपियर रोट 37 plays, a sequence of 154 sonnets, 2 long narrative poems and a few other verses. डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स के बारे में जान लेते हैं. हिज फर्स्ट 126 सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH. डियर स्टूडेंट्स, अब ये WH कौन थे, इनका कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है. इनके बारे में स्कॉलर्स बहुत सारे कयास लगाते हैं. कुछ मानते हैं कि WH जो थे वो विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे. वो ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था, जिसका नाम था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज़, जो 1623 में पब्लिश किया गया था, वो विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड था. स्कॉलर्स WH के बारे में और भी बहुत सारे कयास लगाते हैं. कुछ मानते थे कि WH विलियम शेक्सपियर के क्लोज फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे. कुछ ऐसा मानते थे कि वो उनके पैटर्न हुआ करते थे. Dear students, and the remaining 28 sonnets out of 154 sonnets are addressed to a dark lady, perhaps his lady love. अभी डार्क लेडी कौन थी, इनके बारे में भी कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है. इनके बारे में भी बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत सारे कयास लगाते हैं. कुछ ऐसा मानते थे कि ये मिस फिटन हुआ करती थी. कुछ ऐसा मानते थे कि ये कोई इंडियन लेडी थी. अब इनको डार्क लेडी क्यों कहा जाता था, क्योंकि शी वॉज ए लेडी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन. विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स आर नॉन थ्रू आउट द वर्ल्ड. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट. इनको प्राय इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता था. ही वॉज कॉल्ड द बार्ड और बार्ड ऑफ हेवन. डियर स्टूडेंट्स, इनको बार्ड ऑफ हेवन क्यों कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज बॉर्न ऑन स्ट्रेटफोर्ड-अपॉन-एवन. बार्ड का मतलब होता है पोइट. नाउ लेट्स हैव ए लुक on the brief introduction to the sonnet When to the Seasons of Sweet Silent Thought. यदि हम इनके फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करें, then the sonnet first published in the quarto in 1609 as a part of a sequence of 154 sonnets. It was most likely written in the early 1590s. Dear students, ये सोनेट कौन से एग्जैक्ट ईयर में लिखा गया, इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है. इसी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स जो एग्री करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये सोनेट 1595 से लेकर के 1600 के बीच के किसी ईयर में लिखा गया था. दिस सोनेट इज़ कॉमनली नोन एज रिमेम्बरेंस और सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर. ये सोनेट रिमेम्बरेंस और सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर के नाम से बहुत अधिक प्रसिद्ध है. इन दिस सोनेट विलियम शेक्सपियर टेल्स ऑफ थॉट्स ऑफ पास्ट ग्रीफ्स एंड लॉसेस
इस सोनेट में कवि जो है अपने भूतकाल के जो दुख हैं और हानियां हैं उनके विचारों के बारे में बात करते हैं। This sonnet is addressed to a young man WH who got premature death and supposed to be his dear friend। ये जो सोनेट है WH को एड्रेस किया गया है जिनकी बहुत ही छोटी सी एज में डेथ हो गई थी और ऐसा माना जाता था कि ये विलियम शेक्सपियर के डीप फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे। Within the sonnet, the narrator spends times remembering and reflecting on sad memories of a dear friend। इस सोनेट के दौरान कवि जो है अपने प्रिय मित्र की जो दुखी यादें हैं उनको याद करता है। He grieves of his shortcomings and failures while also remembering happier memories। वो उन सारी चीज़ों पर दुख व्यक्त करता है जो उसने भूतकाल में जो उनकी हानियाँ रही थी उनके बारे में, और सोनेट के अंत में वो कुछ हैप्पियर मोमेंट को भी याद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस सोनेट की कुछ पॉपुलर थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस सोनेट की कुछ पॉपुलर थीम्स हो सकती हैं जैसे द पेन ऑफ मेमोरी, द पावर ऑफ लव, फ्रेंडशिप, डिसअपॉइंटमेंट एंड होप। ये सभी इस सोनेट की कुछ पॉपुलर थीम्स हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस सोनेट की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये सोनेट जो है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट के पैटर्न पर लिखा हुआ है, जिसमें जो 14-14 लाइन जो आइमिक पेंटामीटर्स में लिखी गई होती है उनको 3 क्वार्टर्स, 4 लाइन ईच और एक कपलेट ऑफ 2 लाइन्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट क्वार्टरन है वो है When to the seasons of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh, the lake of many a things I sought, and with old woes, new will my dear times waste। डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर इस सोनेट में बहुत सारे लीगल टर्म्स का, लीगल प्रोफेशंस के टर्म्स का यूज़ करते हैं। वो बहुत सारी ऐसी फिनेंशियल टर्म्स का भी यूज़ करते हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ की जाती थी। तो इस क्वार्टर में भी कुछ लीगल टर्म्स यूज़ की गई हैं, जैसे सेशंस हो गया, शमन हो गया। सेशंस का मतलब है सिटिंग ऑफ ए कोर्ट, या फिर आप कोर्ट प्रोसीडिंग भी कह सकते हैं। और शमन अप होता है टू बी कॉल्ड अपॉन बाय द कोर्ट, जब कोर्ट किसी को एक ऑर्डर पास करके जब कोर्ट में उसको बुलाते हैं उसको समन बोलते हैं। When to the seasons of sweet silent thought means when I am in a pensive state, or you can say when I sit alone in silence। I summon up remembrance of things past means I summon up, I called up remembrance, memories of things past, of past things, means I recall my memories of past things, or you can say I remember the past। When to the seasons, seasons means सत्र कह सकते हो आप, अधिवेशन कह सकते हो। when जब to the seasons एक सत्र था, दौर था of sweet silent thought। sweet silent thought is a kind of tribunal, a place of trial and questioning you can say, यानी मधुर और शांत विचारों का जो। When to the seasons of sweet silent thought means जब एक दौर था मधुर और शांत विचारों का, यानी जब मैं शांत और खुश था तब मैंने आई समन अप, मैंने समन अप मीन्स बुलाया, मीन्स ताज़ा किया, याद किया, रिमेम्बरेंस उन मेमोरीज़ को, उन यादों को, ऑफ थिंग्स उन चीज़ों की, पास्ट जो भूतकाल में बीत चुकी है। यानी जब मैं शांत और मधुर दौर में था तो मैंने जो चीज़ें भूतकाल में बीत चुकी है उसकी स्मृति को बुलाया या ताज़ा किया, या आप कह सकते हो कि मुझे उन सब की याद आई। I sigh the lake of many things I sought। I sigh, sigh means regret, आहा भरी, आहा भरना। The lake of many things, lake means कमी होना, of many things उन बहुत सारी चीज़ों की I sought। Sought is the third form, or you can say the past form of seek। Seek means desire, चाहना। I sigh means मैंने आहा भरी, द लेक ऑफ मैनी थिंग्स उन बहुत सारी चीज़ों की कमियों की, आई सॉट जिनको मैंने चाहा था, यानी जो चीज़ें मैंने भूतकाल में चाही थी पर मैं जिनको प्राप्त नहीं कर सका, यानी जिनकी कमी मेरे जीवन में रही, उनको याद करके मैंने मानो आहा भरी। एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। विद ओल्ड वूज मीन्स सोरोस, दुख, और उन पुराने दुखों ने, यानी जब मैंने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया था तब मुझे जो दुख हुए थे उन पुराने दुखों की आज मुझे पुनः याद आई है, तो उन पुराने दुखों ने मानो न्यू वेल मीन्स मोर्न अगेन फॉर, पुनः रुला दिया। तो उन पुराने दुखों ने मानो मुझे आज एक नया दुख दे दिया हो, मुझे पुनः रुला करके उन्होंने मानो मुझे पुनः दुख दे दिया हो। माई डियर टाइम्स वेस्ट, माई डियर टाइम्स वेस्ट मीन्स हैविंग वेस्टेड माई प्रीसियस टाइम, जो मैंने अपना प्रिय समय नष्ट किया था उसकी याद दिला करके मानो उन्होंने मुझे एक नया दुख दे दिया हो। मीन्स मैंने अपना जो प्रीसियस टाइम वेस्ट किया था उसकी याद दिला करके मानो पुराने दुखों ने मुझे एक नया दुख दे दिया हो, यानी मुझे पुनः रुला दिया उन दुखों ने।
अगला जो क्वार्टन है सोनेट का वो है, देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज टू फ्लो फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हिडन डेथ्स डेटलेस नाइट एंड वीप अफ्रेज लव्स लॉन्ग सीन्स कैंसल्ड वो एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस साइट। देन कैन आई then can I drown an eye unused to flow। unused to flow means not used to weeping, जो रोने की आदि नहीं है। being accustomed to crying, यानी जो रोने की आदि नहीं है। then can I drown means डुबोना, तो क्या मैं डुबो सकता हूँ एन आई उन आँखों को अनयूज टू फ्लो, जो बहने की आदि नहीं है, यानी जो रोने की आदि नहीं है, यानी जो आँखें मेरी रोने की आदि नहीं है, बहने की आदि नहीं है, तो क्या मैं उन आँखों को आंसू में डुबो सकता हूँ, यानी कैन आई क्राई, क्या मैं रो सकता हूँ। अब कभी किसके लिए रोना चाहता है तो वो कहते हैं फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स, प्रीसियस डियर, उन प्रिय मित्रों के लिए, हिड जो छुप चुके हैं, इन डेथ्स डेटलेस नाइट। डेथ्स डेटलेस मीन्स अनएंडिंग, जिसका कोई एंड ना हो, अनंत, नाइट रात्रि में, यानी जो मृत्यु की अनंत रात्रि में कहीं छुप चुके हैं मेरे वो प्रिय मित्र, तो क्या मैं उनके लिए उन आँखों से रो सकता हूँ जो रोने की आदि नहीं है। यानी मेरे जो प्रिय मित्र मर चुके हैं तो क्या उनकी याद में मैं आज आंसू बहा सकता हूँ, क्या मैं रो सकता हूँ। अभी तक तो कभी खुश था, लेकिन अब जैसे ही उसको उन पुरानी चीज़ों की याद आई कि उसने अपना जो प्रिय समय नष्ट किया है, तो अब वो जो हैप्पी स्टेट में था वो एकदम से सैड स्टेट में चला गया है, दुखी हो गया है कभी। तो देन किसके लिए आया है, अब कभी जो है दुखी हो गया, तो अब वो पूछ रहा है क्या मैं उन मित्रों की याद में, जो मेरे प्रिय मित्र थे, जो मृत्यु की अनंत रात्रि में कहीं समा चुके हैं, यानी जो मर चुके हैं, तो क्या उनकी याद में मैं उन आँखों के द्वारा जो रोने की यादें नहीं है, तो क्या मैं रो सकता हूँ, और किसके लिए रो सकता हूँ। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो। एंड वीप अफ्रेश मीन्स वंस अगेन, पुनः नए सिरे से। तो एंड वीप अफ्रेश मीन्स कैन आई वीप वंस अगेन। loves long means who hurts in loves that are long since cancelled who, since over। वो मीन्स सोरो, कैंसिल्ड वो मीन्स जो दुख गायब हो चुके हैं, जो समय के साथ में जो इतना लंबा समय बीत गया है, तो जो मुझे प्यार में जो लव्स लॉन्ग, जो मेरे लव के अंदर जो मुझे हर्ट्स मिला था, जो मुझे आघात हुए थे, उन जो कि समय के साथ में मानो वो जो दुख कैंसिल हो गया था, तो क्या मैं उसकी याद में अब पुनः रो सकता हूँ। वीप अफ्रेश मीन्स पुनः रो सकता हूँ, मीन्स एंड वीप अफ्रेश, क्या मैं पुनः रो सकता हूँ लव्स, उस प्यार के हर्ट्स के लिए, लॉन्ग सीन्स कैंसल्ड, वो जिनको गायब हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, यानी जो प्यार में मुझे दुख मिले थे, जिनको समय ने मानो गायब कर दिया था, तो उनको बीते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन अब मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही है, तो क्या मैं उस लव के लिए भी रो सकता हूँ जिसने मुझे हर्ट किया था। एंड मॉन मीन्स वीप, क्या मैं रो सकता हूँ द एक्सपेंस मीन्स द लॉस ऑफ, उन हानि के प्रति, ऑफ मैनी ए वेनिस साइट यू कैन से द फेडेड मेमोरीज। एंड मॉन, क्या मैं रो सकता हूँ द एक्सपेंस, उस हानि के लिए, ऑफ मैनी ए वेनिस साइट, जो लुप्त दृश्यों की है, यानी ऐसे दृश्य जो कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, यानी जो लुप्त हो चुके हैं मित्रों के साथ, उन दृश्यों के लिए क्या मैं रो सकता हूँ। यानी उसके मित्र अब मर चुके हैं, तो वो दृश्य जो पल उसने अपने मित्रों के साथ बिताए थे, वो पल अब उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, वो दृश्य अब दोबारा घटित नहीं हो सकते, तो वो वेनिस्ड साइट है, वो सारे दृश्य मानो लुप्त हो चुके हैं अब, तो उनका जो नुकसान उसको हुआ है, तो क्या उस नुकसान के लिए भी मैं रो सकता हूँ। इस सोनेट का जो लास्ट क्वार्टन है, यानी थर्ड क्वार्टन है, वो है देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फोरगोन एंड हैविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर दिस सैड अकाउंट ऑफ फो बिमोन्ड मोन विच आई न्यू बी एज इफ नॉट विद बिफोर। देन मीन्स अब जब मैं दुखी हो गया हूँ, देन कैन आई ग्रीव मीन्स शोक मनाना, तो क्या मैं शोक मना सकता हूँ ऑफ ग्रीवेंसेस फॉरगॉन मीन्स सोरोज विच हैपन इन द पास्ट, ऐसे दुख जो भूतकाल में बीत चुके हैं, यानी जो भूतकाल के दुख हैं, तो क्या मैं उन दुखों पर वापस शोक मना सकता हूँ। एंड हैविली मीन्स विद ए हैवी हर्ट, और भारी मन से, फ्रॉम वो टू वो, फ्रॉम वन सोरो टू अनदर, एक दुख से दूसरा दुख, टेल ओवर मीन्स काउंट अप, गिन सकता हूँ, रिकाउंट कर सकता हूँ, मीन्स कैन आई रिकाउंट ईच सैडनेस विद ए हैवी हर्ट दी सैड अकाउंट ऑफ फो बिमोन्ड मोन। जैसा कि हमने बताया था कि इस सोनेट के अंदर बहुत सारे
इकोनॉमिकल टर्म्स यूज़ की गई हैं, या आप कह सकते हो अकाउंटिंग की बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ की गई है। जो दूसरा क्वाड्रेंट था जिसके अंदर यूज़ किया गया था, जैसे डेटलेस यूज़ किया गया था, कैंसिल्ड किया था, एक्सपेंस किया था, वो इस तरह के जो जो फिनेंशियल टर्म्स हैं वो यूज़ की गई थी। और इस क्वाड्रेंट के अंदर जो फिनेंशियल टर्म्स यूज़ की गई हैं वो हैं जैसे टेलओवर हो गया, अकाउंट हो गया, पे हो गया, लॉसेस हो गया। तो इस तरह की कुछ बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ की गई हैं। तो जैसे द सैड अकाउंट, जो एक दुखी खाता ऑफ फो बिमोंट मॉन, मीन्स सोरोज सफर्ड इन द पास्ट, यानी ऐसे दुख जो ऑलरेडी महसूस किए जा चुके हैं, यानी ऐसे दुखों का खाता जिन दुखों को मैं भूतकाल में भुगत चुका हूँ, ऑलरेडी उनका दुख महसूस कर चुका हूँ। विच आई न्यू पे, तो उस खाते को भी मुझे मानो दोबारा पेमेंट करना है। न्यू पे मीन्स उनका दोबारा भुगतान करना है। एज इफ मानो नॉट पेड बिफोर, कि मानो उनका मैंने पहले भुगतान नहीं किया हो। यानी जो दुख मैं भुगत चुका हूँ ऑलरेडी भूतकाल में, अब उनकी याद आने के कारण दोबारा दुखी हो गया हूँ, तो मानो पुराने दुखों का जो मैंने भुगतान नहीं किया था, जो मुझे अब करना पड़ रहा है। अब इसको ही सरल बैंकिंग लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे जब आप कोई लोन लेने जाते हो, कोई हाउसिंग लोन हो गया, कोई पर्सनल लोन वगैरह हो गया, कोई ऑटो लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, तो जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले एक अकाउंट खोलते हैं, तो जिसमें जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको पेमेंट के कर दिया जाता है, और आप इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको धीरे धीरे भुगतान करते रहते हैं। और लास्ट में जब पूरा प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू जब आ जाता है तो उस अकाउंट को क्लोज़ कर दिया जाता है। इसी तरह से एक दुखों का खाता बताया गया है कि मानो मैंने उन दुखों का भुगतान तो मैंने पहले कर दिया था, वो दुख मुझे मिले और मैंने उनका दर्द महसूस किया और मैंने उन दुखों को भुगत लिया, लेकिन अब उन दुखों ने मानो मुझे अब पुनः दुखित कर दिया। तो मानो ऐसा लग रहा है कि मैंने उन दुखों का पहले मैंने उनको भुगता ही नहीं हो, और अब सारे दुख मुझे वो भुगतने पड़ रहे हैं वापस। एक बार पुनः देख लेते हैं इस क्वार्टर को। देन कैन आई ग्रीव, तो क्या मैं अब शोक मनाऊं ऑफ ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, उन दुखों का जो भूतकाल के हैं, यानी जो मित्रों के होने पे जो मुझे दुख हुआ था, तो क्या मैं उस दुख के लिए अब पुनः शोक मनाऊं। एंड हैविली, और भारी मन से, फ्रॉम वो टू वो, एक दुख से दूसरा दुख, टेल ओवर, रिकाउंट करूं, यानी उनको वापस गिनूं, यानी सभी दुखों को मैं वापस उनका क्या शोक मनाऊं क्या। द सैड अकाउंट, एक दुखी खाता ऑफ फो बिमोंट मोन, उन सभी दुखों का जिनका मैं पहले महसूस कर चुका हूँ, जिनको मैं भुगत चुका हूँ। विच आई न्यू पे, तो मानो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे उन सभी दुखों के खाते को मानो मुझे दोबारा पेमेंट करना है, मानो उसको दोबारा भुगतना है। एज इफ नॉट पेड बिफोर, मानो मैंने उनका पहले भुगतान नहीं किया हो। अब इस सोनेट का जो कपलेट है वो है, बट इफ द फाइल आई थिंक ऑन द डियर फ्रेंड, ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड sorrows end. But if the while means as soon as I think on thee, I think of you, dear friend, my dear friend. It is addressed to WH. All losses are restored means all those wounds are healed and sorrows end, and my sorrows come to an end. बट लेकिन इफ़ द वाइल, उस दौरान, जब आई थिंक ऑन दी, जब मैंने तुम्हें सोचा या मैंने तुम्हें याद किया, डियर मित्र, हे प्रिय मित्र, ऑल लॉसेस, मेरे जितने भी सारे जो दुख थे या हानि थी, आर रिस्टोर्ड, मानो वो रिस्टोर मीन्स मेड अप, पूर्ति हो जाना, मानो कि वो पूर्ण हो गए हों, यानी उनकी पूर्ति हो गई हो। एंड सोरोज एंड, और दुखों का मानो अंत हो गया हो। यानी हे प्रिय मित्र, तुम्हें याद करके मुझे बहुत आनंद हुआ और मेरे समस्त दुखों का मानो अंत हो गया हो। Dear students, now have a look on the literary terms या literary device used in this sonnet. तो सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है सोनेट में वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज़ ये इस पूरी पोएम में ही आप देख सकते हो, पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक एलिट्रेशन का यूज़ आपको मिल जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो एलिट्रेशन जिनमें यूज़ किया गया है, उन लाइनों को हम ले लेते हैं। तो एलिट्रेशन इस सोनेट के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है वो लाइनें हैं। Went to the seasons of sweet silent thought, and with old woes new wail my dear time's waste, for precious friends hid in the deathless night, and weep afresh love's long since cancelled woe. Then can I grieve at grievances foregone, and which I knew pay as if not paid before. तो ये सभी लाइनें हैं जिनमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। कौन सा वर्ड रिपीट होके आ रहा है वो हमने रेड कलर में, रेड लेटर्स के अंदर लिख दिया है।
डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एलिट्रेशन के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक के बटन पर क्लिक कर आप जान सकते हो कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच किस तरह का होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच इस सोनेट में यूज़ किया गया है वो है एसोनेंस। उसका भी थ्रू आउट द पोएम बहुत अधिक यूज़ किया गया है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे वैन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यहाँ पे ओ का यूज़ किया गया है। आई साई द लेक ऑफ मैनी थिंग्स आई सॉट, for precious friends hid in the deathless night, the sad account of foe bemoaned moan, and heavily from woe to tell over, but if the while I think on thee। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जिनमें एसोनेंस का यूज़ किया गया है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है कॉन्सोनेंस। तो उसकी भी कुछ लाइनें देख लेते हैं। जैसे मैन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यहाँ पे टी बार बार आ रहा है। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, यहाँ पे एम कॉन्सोनेंस का रिपीटेशन हुआ है। तो ये कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। और जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ किया गया है वो है पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन कहाँ पे यूज़ किया गया है वो है देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। तो क्या मैं उन आँखों को डुबो सकता हूँ। तो यहाँ पे आँखों का पर्सनिफिकेशन किया गया है कि आँखों को मैं क्या डुबो सकता हूँ। आँखों को डुबो तो नहीं सकते ना, तो यहाँ पे पर्सनिफाइड करके बताया गया है कि क्या मैं उन आँखों को डुबो सकता हूँ अनयूज्ड टू फ्लो, जो बहने की आदि नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। जो अगला लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है मेटाफर। तो मेटाफर कहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसे द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो यहाँ पे जो कॉट वाली इमेजरी है उसको, स्वीट साइलेंट थॉट है जो, उसको एक ट्रिब्यूनल के तौर पे बताया गया है। अगली जो लाइन है जिनमें मेटाफर का यूज़ किया गया वो है हिडन डेथ्स डेथलेस नाइट। तो यहाँ पे भी डेथ को एक ऐसी रात्रि बताया गया है जो अनंत है। तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज़ किया गया है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो है पॉलिप्टॉन। तो पॉलिप्टॉन एक इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें सेम रूट से उत्पन्न हुए जो वर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन आए, यानी ऐसे वर्ड्स का रिपीटेशन जहाँ जो सेम रूट से डेराइव किए गए हों। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवांसेस फॉरगॉन। तो यहाँ पे ग्रीव और ग्रीवांसेस दोनों की जो रूट है वो सेम है। वर्ड भले ही अलग हो लेकिन उनकी जो रूट है वो सेम है। तो सेम रूट वाले जो वर्ड्स यदि रिपीट होके कहीं पे आ रहे हैं तो वहाँ पे पॉलिप्टन होता है। और दूसरी लाइन जहाँ पे पॉलिप्टन का यूज़ किया गया है वो है दिस सैड अकाउंट ऑफ फो बीमॉन्ड मॉन। तो यहाँ पे मॉन और बीमॉन्ड दोनों सेम रूट के वर्ड है, तो यहाँ पे भी पॉलिप्टन का यूज़ है। और देख लेते हैं जैसे विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। तो यहाँ पे पे और पेड दोनों सेम रूट के वर्ड हैं, तो यहाँ पे भी पॉलिप्टन का यूज़ किया गया है। यदि हम पोएम के मूड की बात करें तो थ्रू आउट द पोएम देर इज़ ए मेलनकली मूड। पूरे पोएम के अंदर एक उदासी का सा वातावरण छाया हुआ है। ये उदासी का सा वातावरण जो दर्शाते हैं वो शब्द हैं जैसे साइंग हो गया, वूज हो गया, न्यू वेलिंग टीयर्स इन आइज हो गया, वीप फ्रेश हो गया, मॉन द एक्सपेंस हो गया, ग्रीवेंसेस फोगन हो गया, एंड फो बी मून हो गया। तो ये कुछ इस तरह की टर्म्स यूज़ की गई हैं जिससे एक पूरी पोएम में थ्रू आउट द पोएम देर इज़ ए मेलनकली मूड। Dear students, this sonnet is a tribute to poet's friend. Why this poem is a tribute to poet's friend? This poem is a tribute to poet's friend W.H. ये W.H. को dedicated poem है। Poet says that all sorrows are restored when he remembers his friend। जैसा कि कपलेट में कवि कहता है ना कि जैसे ही मैं हे प्रिय मित्र तुम्हें याद करता हूँ मेरे सारे जो दुख हैं उनका मानो अंत हो जाता हो। तो ये पोएम जो है उसको डेडिकेटेड की गई है कवि का जो क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम था W.H. Dear students, now let's have a look on the structure and its form. This form is an English and Spenserian sonnet consists of 3 quatrains of 4 lines each and a concluding couplet of 2 lines। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो सोनेट है वो इंग्लिश और शेक्सपियरियन फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है जिसमें जो 14 आइमिक पेंटामीटर्स लाइंस होती हैं वो उनका 3 क्वार्टर्स में जो 4 लाइन का होता है एक क्वार्टन उसमें डिवाइड करते हैं और एक लास्ट में 2 लाइन का couplet आता है। In the quatrains he grieves for the grievances foregone and in the couplet he concludes the idea which his friends memories that ends all his sorrows। तो जो क्वार्टरन है, जो 3 क्वार्टरन है 4-4 लाइन इसके, उनके अंदर कवि जो है उन दुखों पर, जो भूतकाल के जो दुख होते हैं उन पे दुख प्रकट करता है और जो कपलेट है उसमें वो ये कंक्लूड करता है कि जैसे ही वो उसके फ्रेंड की मेमोरी उसके दिमाग में आती है तो उसके सारे दुखों का मानो अंत हो जाता है। द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट इज AB AB CD CD EF AF GG।
Dear students, at the end of this video, let's have a look on the conclusion of this sonnet. This sonnet is a poem with a melancholy mood. It serves as a tribute to his friend W.H. It is a typical English sonnet. The second line of the sonnet achieved a worldwide circulation and is concerned with time. जो इस sonnet की जो दूसरी line है वो बहुत ही फेमस लाइनें मानी जाती है. जो लाइनें हैं आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस लाइनें हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द like button and don't forget to share it among your friends. And dear students, if you have any query and suggestion, don't forget to write it down in the comment section. Thank you. Thanks for watching.